So guys, let's start with today's session. So just again, I hope I'm audible to every one of you. So just quickly comment. My voice is audible to all of you. Just a quick check and then we will be starting. So just quickly mention in the chat section. Okay. So the main reason for conducting this session is to address different queries of the participants, to address different queries of the students related to September 2021 attempt. So we have deliberately kept the batch size limited, like we have put different batches. So you have been allotted different batches so that we can cater to individual doubts and discussion. So try to make the session very interactive. It should not be the case that only I am speaking and you guys are listening. ये session सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही रखा गया है, so that any journal queries related to the exam pattern can be discussed in this session. So do make extensive use of the session. Ask as many doubts as you can, journal doubts. Subject wise doubts के लिए you have our mail IDs, you have our WhatsApp, so you can ask all your subject related doubts there. But in this session, we will just be talking about journal doubts. So before I start speaking, do you guys have any questions or doubts which you want me to take? So आपके जो भी पहले questions हैं, you can just write in the chat section those questions. So guys, make it fast so that we can actually focus on the things which are required. Okay, so Pratham is asking how to proceed with CB exam. Okay, what about others, guys? I know that many of you have a lot of doubts. You guys keep on asking your doubts. So just please make use of this session. इसके अलावा प्रथम के अलावा क्या किसी को कोई भी doubt नहीं है? So Pratham has asked a single question: how to proceed with CB exam. What about others? Can we ask paper specific doubts? I think Vicky, I just shared that any subject wise doubts will not be catered here. For all the subject wise doubts, you can simply put it on WhatsApp or raise via mail and you will be connected with your respective faculty there. Karan is again asking how to proceed in Excel part of CM2 exam. Sanskar is asking how can manage time in paper. Sarthak is asking, please once discuss II pattern and how the exam will be conducted. Do we need to keep hard copy of tables and formulae of CS1? Okay, so how should be thinking approach for CP1 exam? Okay. If we copy anything from book to, do we have to mention the part from where it has been taken, like paragraph number or maybe page number or chapter number? How to use notations in CB1, like we have beta or variance notations in last unit. Okay. So guys, put on more doubts. एक बार मुझे आपके डाउट पता चल जाएंगे तो I know what things I also need to entertain while talking about other things as well. So just put on further doubts. Given II exams pattern have changed drastically for CM2, does it make sense to solve past year questions which are standard book or very wordy in nature? Should we expect any pattern change in terms of number of objectives from II as well this time? How to increase the scope of ideas for CP1 in the limited time? Do we have to submit exam prior to 30 minutes strictly? Okay.
Is there any specific font or size which we have to use on Word? So let me first start with some common things that I feel you guys should know for September 2021. And in the meanwhile, you guys can just अभी के लिए आप क्या करना देखो अभी तक आपने जितने doubts post कर दिए हैं it's okay. So just as of now, just focus on the things, just focus on the listening things which I am speaking. And then once given an opportunity to write again, you can put on your further doubts. So let's just focus now on the things that I will be speaking. So guys, don't put any doubts in the chat section till the time I don't ask you to put your doubts. अभी के लिए अपने सब आपका focus for the next 10 to 15 minutes, just focus on what I'm trying to say. So first thing is, you guys are completely aware of the fact that less time is left for exam. Whether you are planning from II or you are planning from IFOA, limited time is there. Now, in this limited time, we have to make effective utilization of time. अब वो बोलना बहुत इजी है, मैं आपको रोज बोलूं हाँ हमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है, हमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है, एंड आपको भी ये पता है कि हाँ मुझे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है, बट स्टिल आप अगर वो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज you are occupied in some other commitments, or you are occupied in office work, or you are occupied in your college work, or the exam itself requires lot of things, then what to do? So अब से लेकर till your exam definitely you need a strict एक आपका पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का. अभी तक जो कर लिया that was completely okay, लेकिन अब से लेकर एग्जाम तक there has to be a strict pattern of exam. How you have to proceed is, you should know कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है क्या नहीं करना. You should be aware of this fact कि हाँ अगर मुझे सुबह मॉर्निंग में उठना है तो मुझे अपने सब्जेक्ट का क्या कंप्लीट करना है. अगर मैं सुबह रात को मैं सो रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे सुबह उठकर क्या कंप्लीट करना है. So there has to be a strict discipline pattern which we guys have to follow. From considering आप ये चीज सोचो कि मुझे आज से ही ये strict pattern implement करना है. अब आज से अगर आपको ये pattern implement करना है, you guys have to stay motivated. आपने एग्जाम फिल कर दिया, आपके ऑलरेडी एक्सपेंसेस बियर हो चुके हैं, be it in terms of coaching, be it in terms of filling the exam, be it in terms of time. अब एक महीना आपको अगर स्ट्रिक्ट होकर आपसे रेगुलर स्टडीज करनी है एंड आपका एग्जाम निकल जाए, अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको एक डाइट में करना चाहते हो, आपके ऊपर है कि आप इसको लिंगर ऑन रखना चाहते हो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा. सो अब नहीं हो रहा वाली चीज आपको अपने माइंड से हटानी पड़ेगी. अगर आपने एग्जाम फिल किया है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहता है कि या तो मैं एग्जाम फिल करूँ ना, लेकिन अगर मैं एग्जाम फिल करा है तो आई ऑलवेज ट्राई कि हाँ वो मेरा एक एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकले. अब एग्जाम आपने भर दिया है, आपने एक्सपेंसेस इनकर कर दिए हैं, अब आपसे सिर्फ एग्जाम क्या चाह रहा है, आपका सिर्फ टाइम. अभी तक आपने टाइम दिया है नहीं दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया तो इट्स हाई टाइम, इट्स एन आई ओपनर फॉर यू टू रियलाइज दैट यू गाइस हैव टू स्टडी अ लॉट. अब अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी तरफ से प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आप 1 to 1.5 आवर्स भी दिन का मैनेज करोगे तो यू कैन इजिली कंप्लीट योर कोर्स irrespective of the subject that you are planning. I'm not talking about any specific subject, I'm just talking about the things that any student who is planning for September 2021 should cater into consideration, given that it's 15th August. So we have to first of all stay motivated. अब अगर आप यही सोच के साथ एग्जाम देने जा रहे हो यार देखा जाएगा, हो गया नहीं हुआ, तो पहली बात तो आपको ये सोच खत्म करनी पड़ेगी. बिकॉज आप तभी एफर्ट्स डाल सकते हो जब आपको लगेगा कि हाँ यू कैन क्लियर द एग्जाम. So you take this as motivation or take this as in whatever form you want to take. But yes, do not leave this motivation till the end of your exam. Yet, yes, I have to do it and I can do it. Now, अब आप लोगों को बहुत सारी confusions हैं related to the pattern, which should not be the case इस point पर आकर.
अगस्त में आकर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या हमें एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, या आईआई का पैटर्न क्या रहेगा, या आईयूको का पैटर्न क्या रहेगा। ये सारी चीजें आपको पेपर फिल करने से पहले कंफ्यूजन आए जस्टिफाइड है। पेपर फिल करने के बाद व्हेन इट इज 15 days left for exam, these questions should not be part of this discussion today. But still, अब अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि क्या हमें आईआई के अंदर एमसीक्यूज आएंगे, so I think you should leave all these things for societies to decide कि हाँ उनको पैटर्न कैसे रखना है। You should just concentrate on your studies. आपको बस इतना बता दिया गया है कि 100 मार्क्स अगर पेपर है और गिवन की पेपर ऑनलाइन है, तो दे हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी। That means they have taken this thing into consideration कि बच्चा अगर ऑनलाइन टाइपिंग करके एग्जाम दे रहा है तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम होगी। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि 50 नंबर के एमसीक्यू आएंगे या 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। ऑटोमेटिकली पेपर विल बी एडजस्टेड इन दिस मैनर that you can attempt the exam in given time frame. Your focus should not be on the format of exam. Your focus should be on the syllabus. ऑब्जेक्टिव्स आपसे आईआई भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव्स आपसे आईएफओए भी पूछेगा। They will try to give more marks for those questions which require more typing. आई का ओपन बुक एग्जाम नहीं है। You I think if any one of you has is planning to give exams from II, तो एक आई का मॉक ऑलरेडी हो चुका है एंड सेकंड मॉक इज आल्सो शेड्यूल्ड एंड द लास्ट डेट फॉर इट इज आई थिंक 18th August. आप अगर उस मॉक में सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास, आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर है आपका, वो आपको एक सेफ ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। दैट मींस इफ यू ओपन दैट ब्राउजर ऑन योर लैपटॉप और पीसी, यू कैन नॉट ओपन एनी अदर थिंग। सो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ जो खुला होगा वो सब कुछ बंद हो जाएगा एंड यू विल जस्ट बी गिवन एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर ब्राउजर। आप ग्राफ्स यूज नहीं कर सकते, ये क्लियर है। तो अब ये डाउट नहीं आना चाहिए, लेट्स सपोज CB2 के अंदर ये डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या हम ग्राफ्स बना सकते हैं। ये क्लियर है कि अगर ग्राफ्स नहीं यूज कर सकते दैट मींस नहीं यूज कर सकते। IFOA is also clearly mentioned in the instructions that you won't be getting any questions related to graphs making. First thing. Second thing, कि अब हम एग्जाम 3 घंटे में क्लियर कर पाएंगे, पेपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अगेन दिस शुड नॉट बी योर क्वेश्चंस। आपको पेपर, आपकी अगर तैयारी अच्छी है, आपको बस ये फोकस करना है कि मैंने अपना 100% सिलेबस अपनी 100% एफर्ट से किया एंड बाकी फोकस, बाकी चीजें आपको सोसाइटी पे छोड़नी है कि हाँ दे शुड टेक इनटू कंसिडरेशन दैट अ स्टूडेंट इज गिविंग द एग्जाम ऑनलाइन, तो वी हैव टू गिव मोर मार्क्स फॉर दोस क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर मोर टाइपिंग। और वो ये सोसाइटीज ये दोनों चीजें कर रही है, तो इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं। हम दिन में अगर ये सोचेंगे यार कि ये वाला क्वेश्चन मैंने पास पेपर 2012 का उठाया है, उसमें तो ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस डेरिवेशंस पार्ट है। चाहे मैं CM2 की बात करूं, चाहे मैं CS2 की बात करूं, या CM1 या CS1, एनी ऑफ द न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, you won't be getting any questions related to derivations in your IFO exam. अभी तक आप डेरिवेशंस कर रहे थे, अंडरस्टूड था कि आपने समझने के लिए कर रहे हो, या फिर जब हम एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, हमारे हम वी आर वेरी एक्साइटेड कि यार मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से समझना है, एक ईच एंड एवरी डेरिवेशन शुड बी ऑन माय टिप्स। आई नो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर ऑफ दिस पर्टिकुलर व्यू, लेकिन इस पॉइंट पर आकर यू शुड लीव ऑल दीज थिंग्स। अब आपको जो नॉलेज गेन करनी थी, नॉलेज गेन होती है इनिशियल के 3 महीने, लेकिन जब 1 महीना एग्जाम को रह जाता है, उस टाइम पर हम लोग एग्जाम पैटर्न पे फोकस करते हैं। नॉलेज मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितनी एक नॉलेज आपको एक सब्जेक्ट की गेन करनी होती है, रिक्वायर्ड नॉलेज, वो अभी तक आपको आ जानी चाहिए। आप इस टाइम पर डेरिवेशंस लेके बैठोगे, दैट मींस यू आर जस्ट मेकिंग योरसेल्फ फूल और यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज यू वोंट बी गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट। You would have gained a lot of knowledge if you would have done practice in the initial months, but once we are just close to 15-20 days left for the exam, practicing derivations won't make any difference. अब इसी के साथ एक controversial question आता है कि II के अंदर तो derivations आ सकती हैं। Yes, you can get derivations in II, but again very less chances are there because there are a lot of other things that need to be focused upon.
एंड डेरिवेशंस के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, which obviously is difficult to do in II as well. So II will also try to avoid all these things. So now let me first talk about numerical subjects and then I will be coming to theory subjects. अब मैं पहले numerical subjects की बात करती हूँ. चाहे आप CS1 प्लान कर रहे हो, चाहे आप CM1 प्लान कर रहे हो, CS2 प्लान कर रहे हो, CM2 प्लान कर रहे हो, इस टाइम तक आप सबका वीडियोस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए. So I think for many of you must have completed that, but yes, for many of you that is not yet completed. So your focus is to wind up the videos as soon as you can. अगर अभी तक हम लोग सिलेबस पे ही फोकस करेंगे या फिर मान लो क्लास के अंदर ऑलरेडी हम लोग लास्ट यूनिट तक पहुंच चुके हैं और आपकी अभी तक सिर्फ इनिशियल की मिडिल यूनिट्स चल रही हैं, तो दैट मींस समवेयर समथिंग इज लैकिंग एंड यू हैव टू कवर अप द डिफरेंस. वीडियोस पे अब आपका टाइम वीडियोस पे वाइंडिंग अप का टाइम आ चुका है. So you should not focus much on videos. You should try to wrap up the videos as soon as you can, first thing. Second thing is you have been provided with summary list of each subject, of each particular chapter. Just try to do as many questions as you can from that summary list. So that is extremely important. We have updated 2021 April questions also in that. So just try to complete your summary list. Ab jab we ask students to complete summary lists, we have done, we have added questions from 2012 onwards, and when we ask students to share the doubts, many of you ask doubts. Say मेरे पास डाउट आता है, लेट्स सपोज आप मुझे मेल करते हो आई सितंबर 2006 क्वेश्चन 1. डू यू थिंक ये डाउट रेस करने का कोई सेंस है? इट विल टेक मी 5-7 minutes to handle that particular doubt, but that is what you are doing is not correct. अगर आपके पास इतना ही टाइम है, you should focus. अगर आप IIF को प्लान कर रहे हो तो you should focus on II questions. अगर इतना ही टाइम है, लेकिन एटलीस्ट अपना डायरेक्शन तो ठीक रखो. आप अगर 2006 2005 के क्वेश्चंस डाउट्स में रेस करोगे या फिर उनमें कंफ्यूज होगे, तो दैट मींस आप अननेसेसरी वो चीजें कर रहे हो for which the pattern also has changed. तो अगर मैंने आपको समरी लिस्ट में 2012 onwards questions लिख के दिए तो उसका कुछ तो रीजन होगा. आप 2008 questions 2006 onwards questions अगर कर रहे हो, so that means you are just making yourself full that I am doing lot of practice, I am doing questions from 2006. मैंने तो पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस कर लिए. वो करने का कोई फायदा नहीं है जब आपको मैं 2021 का क्वेश्चन दूं और अगर आपसे वो टाइम में नहीं हो रहा तो आप 2006 के जितने मर्जी क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं. तो पहले तो अपनी इस हैबिट को अपने ये 15-20 दिन के लिए भूल जाओ कि हाँ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने. आप 4 क्वेश्चंस करके जाओ, लेकिन दोस क्वेश्चंस शुड बी ऑन योर कमांड. इस तरीके की प्रैक्टिस चाहिए, इस तरीके की प्रिपरेशन चाहिए हमें एग्जाम के लिए. तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप अननेसेसरी अपना 2005 2004 के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करो. टाइम है आपके पास, कोर रीडिंग इतनी बड़ी है. आई डोंट थिंक सो कि हमारा एक्चुअल का किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस इतना कम है कि आपको 2000 ऑनवर्ड क्वेश्चंस करने की जरूरत है. आपके पास आपकी कोर रीडिंग है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, समरी लिस्ट है, असाइनमेंट्स हैं, यूटीज है, मॉक्स है. Why are you not focusing on that and instead you are just focusing on earlier questions which the syllabus for almost all the subjects has changed drastically. I am not talking only about 2019 curriculum change. I am talking about everything. आप 2000 में और 2021 में ड्रास्टिक सिलेबस चेंज हुआ है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये चेक करो इतना सिलेबस मेरे को करना है, क्या नहीं करना. So just focus in the right direction, which is the need of the hour. Check. अब ये अननेसेसरी चीजें कि मेरा उस टाइम पर सिस्टम नहीं चल रहा था तो मेरा पेपर अच्छा नहीं हो पाया या फिर कोई टेक्निकल चीजें हो गई, ये सब कुछ आपको पहले से देखना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं देखते. हमें लगता है ये तो चल ही जाएगा, इसको क्या करना है चेक करके. तो मेक श्योर कि यू आर चेकिंग योर सिस्टम कंपैटिबिलिटी, be it II or IFO, check your system compatibility so that you are not facing any errors. II का भी आपके पास अपलोडिंग डाउनलोडिंग ऑप्शन होता है कि आप चेक कर सकते हो कि you are able to download the paper or not. IFO में भी same thing है. So make sure you are checking your system compatibility in right time.
आपका एक्सपेंस वेस्ट जाएगा, सब कुछ वेस्ट जाएगा अगर उस टाइम पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर you should be done with the videos, you should have been done with your summary list as well. आपका फोकस असाइनमेंट्स पे होना चाहिए, यूटीज पे होना चाहिए एंड मॉक्स पे होना चाहिए। फॉर दिस पर्टिकुलर बैच there are many students who are attempting their UTs on time, but out of the students, I mean, if for specifically for this batch, if I talk about, there are many students who are not at all attempting UTs. So अगर आपको लगता है कि आप नहीं अटेम्प्ट करोगे, आप मॉक भी अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप यूटी भी नहीं करोगे और आप ये सोचते हो कि आप मतलब एग्जाम में सब कुछ अपना बेस्ट अटेम्प्ट दोगे, तो हो सकता है आप वैसा दे सको, बट द नीड ऑफ द आवर इज टू प्रैक्टिस अ लॉट। आप जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं, हाउ कैन वी मेक टाइम मैनेजमेंट, हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम, उन सबका एक ही आंसर है मेरे पास, द टाइम मैनेजमेंट। आप मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हो, हाउ कैन वी डू द क्वेश्चंस इन गिवन टाइम फ्रेम, मेरा आंसर है, डू यू गाइस मैनेज टू डू यूटी, क्या आपने यूटी दिया था, नहीं दिया था, क्या आप मॉक दोगे, हो सकता है आप मॉक दोगे, क्या आपने असाइनमेंट सबमिट करी, नहीं करी, तो वो कहाँ से आपकी स्पीड आएगी, आपको कैसे पता चलेगा ऑनलाइन पैटर्न क्या है क्या नहीं है, अगर आप इन सब चीजों का यूज नहीं कर रहे। सो अभी तक नहीं किया मैं, दैट्स कंप्लीटली ओके, बट अब तक, अब से लेकर एग्जाम तक, मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग योर यूटीज, चाहे एक रहता है, दो रहते हैं, आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के जितने भी यूटीज रहते हैं, just try to attempt those UTs, just try to give the mock of your respective subject। आप दोनों सोसाइटी से प्लान कर रहे हो, दोनों सोसाइटीज के मॉक दो, आप सिंगल सोसाइटी से प्लान कर रहे हो, एटलीस्ट उसका मॉक तो दो। मॉक एंड यूटीज आर अरेंज फॉर यू गाइज ओनली, मुझे उससे कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, मेरा तो काम कम होगा, मुझे कम चेकिंग करनी पड़ेगी, but it's just for you guys to realize that you really have to focus lot on practice plus doubts raising। आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है डाउट्स रेज करने का, you can simply collect your doubts, can mail your doubts, ask on the institute number to keep a doubt class, if you want they can keep a one-to-one session with your respective faculty, but you just have to ask for that। आपको लगता है कि आपके पास कोई डाउट्स नहीं है, यूटीज हम करेंगे नहीं, मॉक हम करेंगे नहीं, पेपर में देखा जाएगा कि हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो ये चीज अब छोड़ दो। इनिशियल मंथ्स में चलता है कि ठीक है देखा जाएगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन अब बहुत टाइम नहीं पड़ा, सो जस्ट लीव ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, ना फोकस शुड बी ऑन कवरिंग द सिलेबस, ट्राई टू कवर 100% सिलेबस, लेकिन अगर आप 100% नहीं भी कंप्लीट कर पा रहे, मेरा हमेशा ये व्यू पॉइंट है कि अगर मैं 100% नहीं भी कर पा रही, लेकिन अगर मैं अच्छे से 80% 90% करके जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन जो मैं करके जा रही हूँ मुझे वो बहुत अच्छे से करना है। सो जस्ट मेक श्योर that you are doing everything, I mean, in correct direction, you are at least focusing on that which is the need of the hour। आप अननेसेसरी चीजों पे मत फोकस करो, जो चीजें एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है उस पे फोकस करो। कोई चैप्टर आपको लगता है कि नहीं ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको अभी के लिए छोड़ दो, बाकी चीजों पे फोकस करो, but at least you should try that you are, I mean, focusing on the things which are required for exam। अब बाकी मैं थियोरी सब्जेक्ट्स की बात करूं, अगर थियोरी सब्जेक्ट्स में इट्स कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड, आप ये सोचोगे कि हम रट के चले जाते हैं, मैं बुक से इस चीज से ये कॉपी कर लूंगी, मेरा वहां पे ओपन बुक एग्जाम है, मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉपी। पहली चीज, कॉपी की तो वहां पे टाइम ही नहीं है। सेकेंड चीज, जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे कॉपी मांगेगा ही नहीं, आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा पेपर किया कॉपी करके, बट बाइंडेड जब आपका रिजल्ट आएगा यू वोंट बी एबल टू क्लियर, बिकॉज मैं बार बार थ्योरी सब्जेक्ट की क्लासेस में एक ही चीज रिपीट करती हूँ, फोकस ऑन द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन एंड देन फोकस ऑन व्हाट यू आर राइटिंग। आप गलती क्या करते हो, आप बस क्वेश्चन देखा, अननेसेसरी बस लिखना स्टार्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे बस जल्दी से पेपर कंप्लीट करना। फोकस मेरा पेपर कंप्लीट करने पे है, लेकिन पेपर कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अंधेधुंध वो लिखना स्टार्ट कर दूं which is not required। मेरा फोकस करेक्ट चीजें लिखने पे। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स, बीट CP1, बीट CD1, बीट SP, just make sure you are reading the question carefully,
then answering application based questions. Do not copy anything from the book. प्लेगैरिज्म इशू आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे. आप अभी तक आप मुझसे आपने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर हम बुक से कुछ कॉपी करते हैं तो क्या मुझे पैराग्राफ नंबर, पेज नंबर, ये सब चीजें लिखनी है. ये सब चीजें लिखने तो तब पड़ेंगे ना जब बुक से कुछ यूज होगा. बुक से कुछ भी यूज नहीं होने वाला आपका IFOI के एग्जाम में, ये आप अपने माइंड में डालिए. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो डायरेक्ट बुक वर्क आएगा. आपके पास पास पेपर्स लिमिटेड हैं, इसलिए आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं बुक से डायरेक्टली कर सकती हूँ, लेकिन ऑनलाइन पैटर्न के बाद से आप कुछ भी बुक से डायरेक्टली नहीं कर सकते. तो बुक से कॉपी करने वाला तो मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, चाहे वो CP1 की बात करूं या मैं CB1 की बात करूं. CB2 में तो वैसे भी कुछ भी डायरेक्टली नहीं आता. इसके अलावा जो ये कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है. इसके अलावा जो आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स हैं, मेरा यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कशन करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि you guys should come up with as many doubts as you can. You guys should come up with different questions and just raise those questions so that we can work on that, and you can also work on your weakness areas. ये सब चीजें, these are the normal things that or the general things that I wanted you guys to focus upon. If you are planning numerical subject, focus more on the word practice. If you are planning theory subject, focus more on application point building. आपके X part B questions, whether it is Excel or it is R, try to do practice in that respective software only. अगर आपको Excel की practice करनी है, आप IFOI के पास पेपर्स उठाओ, II के पास पेपर्स उठाओ, अपनी बुक के क्वेश्चंस उठाओ, नॉर्मल पार्ट A के, और उसको आप Excel में यूज करो. Same goes for CS1R and CS2R. अब प्रैक्टिस करना सिर्फ आप लोगों के हाथ में. मेरे को यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि मेरे अभी भी इस पर्टिकुलर बैच की UTs की अटेंडेंस बहुत लो है. So just make sure you are preparing for your UTs, giving your UT on time, and then attempting your mock, giving your mock on time. Wait for the feedback. Just focus on what the feedback you are receiving. आपको जिस भी आपके सब्जेक्ट का जो फीडबैक आता है, try, you can contact my institute number, ask them to connect you with the faculty. इन केस अगर आपको लगता है कि आपको अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से मेरे से कुछ कनेक्ट करना है 1-to-1 सेशन में, यू कैन आस्क फॉर दैट एज वेल, बट यू हैव टू आस्क योर डाउट्स, यू हैव टू प्रोसीड एज पर द पैटर्न, एंड यू हैव टू स्टडी रेगुलरली. सो अभी तक जो आपने किया इट्स ओके, बट आज से लेकर एग्जाम तक जस्ट मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग, you are just giving your 100%. So that was it from my side. I think with this I have answered most of your questions that you guys have raised. Still in case कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, ये हमने बहुत कॉमन चीजें डिस्कस करी हैं. कुछ भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स है, एक्सेल पोर्शन से रिलेटेड, आर पोर्शन से रिलेटेड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट में हाउ टू इम्प्रूव द लैंग्वेज, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाउ कैन आई कम अप विद द मोर आइडियाज, यू हैव टू कनेक्ट फॉर दैट पर्सनली. बट जस्ट यू हैव मेल ID, आप पढ़ो, आप डाउट्स रेस करो, डाउट्स के ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आएंगे ही आएंगे, एंड जस्ट वर्क ऑन योर वीकनेस एरियाज. अब वो आपके ऊपर है, आप इस फैसिलिटी को कैसे यूज करना चाहते हो. जस्ट मेक श्योर UTs अटेम्प्ट कर रहे हो, मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, रटना बिल्कुल बंद कर दो. कोई फायदा नहीं है चीजें रटने का, चाहे वो न्यूमेरिकल की बात करूं, चाहे मैं थ्योरी की बात करूं. रटने पे फोकस नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पे फोकस करो. सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. रेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए एक सिंपल सा एक फंडा याद रखो. हर एक क्वेश्चन के लिए, मतलब 1 मार्क्स के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, दैट्स इट. अब उस हिसाब से आप प्रोसीड करते रहो. अगर आंसर इजी है तो वो 2 मिनट 1.5 मिनट में कन्वर्ट कर दो. अगर क्वेश्चन मुश्किल है तो वो 2 मिनट 2.5 मिनट में कन्वर्ट कर दो. और ये क्वेश्चन आपने रेज किया था कि हाँ हमें मतलब अपलोडिंग टाइम जो गिवन है, जस्ट मेक श्योर जो आपको अपलोडिंग टाइम गिवन है आप उसी टाइम में पेपर अपलोड कर रहे हो.
because you never know, they can have their software which is tracking the last change time. So why to take risk? So don't indulge in all these activities. आप आराम से पेपर 3.25 घंटे में मैनेज कर सकते हो. So don't use uploading time for writing. You should just keep it for uploading only. Try to manage paper in the given time frame only. And one very important thing, do not indulge in group activities. ये सब चीटिंग करके कोई फायदा नहीं मिलेगा. Just give your best as much as you can. Rest, there is always a second chance. So don't indulge in any cheating or any group discussions, or group studies is okay, but group cheating is not okay. So don't indulge in all these things. कोई सेंस नहीं. आप अपने बेस्ट जज आपको दो, जितना आपको आता है. आप ये सोचो कि किसी और को इतना नहीं आता, मेरे को सबसे अच्छा आता है, तो बस इसी हिसाब से आप अपना पेपर दो. Hope you guys clear, I mean, hope that you all are able to clear your exam in this attempt only, but there is always a second chance. Instead of indulging in all these activities, it's better जितना आता है उतना आप दो, and rest just you can leave it for the next attempt. But just give your 100%, make effective use your time. आपने पैसे बहुत ज्यादा spend करे, so just give justice to that expenses. So that was it from my side. Now for any specific subject related doubts, please connect on one-to-one basis for that. So I hope I have made myself clear to all of you. So that was it from my side for the day. Thank you.